नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव गुरुजा जेनेआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों का है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Ji. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है। When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. जी, दुरुस्त बात है। और चलिए, कल प्रदीप जी इज दी डीएमसी पोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों को, भैया अपने घर के बाहर आइए, मिनिमम 80% पोलिंग कीजिए मुंबई में, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। जी, ये मुझे कहा जा रहा है माइक जरा ऊपर कर लो। कितना ऊपर करूँ यार? अपने मुंह के ऊपर लगा दूं क्या माइक को? कैसे क्या कर रहे हैं आप? मेरी समझ के बाहर है। टाई के साथ तो टच अभी भी होगा। मैं काम करता हूँ, इस माइक को मैं यहाँ लगा लेता हूँ। आई मीन दिस इज सो फनी। Suddenly out of the blue, as soon as we go live, I am told to do this to the mic. In any event, as far as we are concerned, we would like it if all of you go out and vote. You need to vote. Mumbai is your city. आपको वोट करना अनिवार्य है और जरूर वोट कीजिए। By the way, in the meantime, great news. Our foreign secretary spoke to the foreign minister, who's called the Secretary of State, मार्को रूबियो। डॉक्टर जयशंकर की बातचीत हुई है मार्को रूबियो साहब के साथ और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने डिफेंस के बारे में बात करी, फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात करी, थोड़ी बहुत टैरिफ्स के बारे में बात हुई है। और सुनने में यह आया है कि बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। जो थोड़े बहुत टैरिफ्स को लेकर के जो है कि दैट इज व्हाट पीपल आर होपिंग दैट इट विल बी डन वेरी वेरी शॉर्टली। प्रदीप जी। Sergio Gore has said, yes, he says Sergey Gore. Yes. Sergey Gore. He says Trump friendship with Modi is real. Trump and Modi, they have a good friendship, and their friendship is for real. Gee. Now, how much to believe of that? Because yes. Who's going to tame the President Trump? Gee. Only Trump himself can control. That's right. Nobody can predict what Trump is going to tomorrow. That's right. He's happy one day, is unhappy one day. That's right. He says, you called and told me, sir. Modi says, I never call anybody, sir. I call them, Your Excellency. So, I stopped the war. India refused and says, you stopped the war. I mean, you got countries, past 6 months has been totally this kind of activities where he says something and India, through our external ministries, refute the allegations. Now, when are we going to come to I mean, as you say, the trade meet, now he says anybody dealing with Iran are going to have more tariff restrictions. So, India deals with Iran. India buys oil from Iran. So, Russia, Iran. So, what's going to happen to India? That's right. Tariff. That's right. As far as tariffs are concerned, as far as we are concerned, we are very, very clear that our agriculture, that is the farm products, they are sacrosanct. We are not going to be bamboozled into opening up our agricultural market so that we can be bombed with American goods. There are certain areas which, I mean, we just can't. In the other areas, of course, an accommodation is possible, and I think that is being done. Right. Pradeep ji. So, no, we need to, now another point of talks is here. राहुल गांधी जी ने कहा, फिर वही एलिगेशन है कि मोदी जी के सरकार वी गॉट इन अ प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी इज कंसर्न, लोकतंत्र खतरे में, डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट. नाउ ही इज बीन गोइंग ऑन टेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ही सेज where manufacturing is concerned, China is way ahead. There's a huge gap between China and India.
we need to improve our manufacturing. In fact, when he had gone abroad the last time, he talked about the decline in manufacturing. That's right. So he's Yeah, up but to it but again. the only thing is, so what? I mean, how does it make a difference as far as we are concerned? We've been behind China for a very long time, so who's to blame for that? Let's be very, very clear. As far as the Gandhis are concerned, as far as the Congress governments are concerned, they kept us in a very, very socialist kind of a setup for such a long, long, long time when people had moved away. You know, China, it started off as a communist country and then suddenly they decided, hey, listen, this is not going to work. So they opened up their markets. That was about 15, 20 years before India did. So why did the various Congress governments keep us restricted in that manner to a socialist model, wherein everything was being done by the government, everything was owned by the government, all employment was provided by the government, and you could not run a business unless and until you paid off people in the so-called license Raj. The license Raj is a gift of the Congress to the country. So I don't know what is he talking about. But he's talking. He's talking. But at the same time, Yogi Adityanath is जो relentless pursuit against religious conversions. Yes, that's true. Religious conversions के खिलाफ एक जंग छेड़ा है. STF probing matters. That's right. And things are heating up where religious conversions again. There is no compromise, he said. विकास भी, विरासत भी. यूपी को 1 trillion economy की तरफ ले जा रहा हूँ. Poverty in 3 years will be clear. Zero poverty in 3 years. योगी जी का aim. At the same time, विरासत को protect करूँगा. I will. He talked about various temples that are destroyed by Aurangzeb, but absolutely essential that Krishna Janmabhoomi be retrieved. Krishna Janmabhoomi, काशी विश्वनाथ, राम टेम्पल तो आ ही गया. भाई देखिए प्रदीप जी, आपको याद होगा हमारे आदरणीय सम्माननीय अली दारूवाला साहब जब यहाँ पर थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सारे मुस्लिम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान वापस दे दीजिए. क्या आप अरब देश से या तुर्की से या अफगानिस्तान से या ईरान से लेकर के आए थे? आप यहाँ पर आए ना, और आपने आकर के इन चीजों को टेक ओवर किया, अब वापस दीजिए. ऑल आई एम सेइंग इज, एंड हमारे आसिफ फारूकी साहब बहुत गुस्से में हो गए थे उस वक्त जाके हमारे कांग्रेस के. So but all the same, well, that's it. I think we've got a couple of very good guests with us, very honorable guests. Can we go across to them? Can we go to our guest, please? There it is. Ah, lovely. Sanjay Trivedi ji, namaskar. जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव, वंदे मातरम. वंदे मातरम. कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब जब भी यहाँ पर आते हैं मुशहरा लूट के ले जाते हैं यार. क्या क्या करे, बाकी सब लोग आपके सामने आने से डरते हैं. फिर ये क्या है भाई, हर एक कोई बोलता है कपिल श्रीवास्तव साहब क्या बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, करेंगे नहीं. सो कपिल श्रीवास्तव साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने कन्वर्शन के खिलाफ, यानी ये कहा है धर्मांतरण के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ दी है. तो इतने ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं क्या यूपी में? सर पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब मैंने सुना नहीं है, मतलब हो सकता है कि मेरी नॉलेज नहीं हो. योगी साहब के पास तो इंटेलिजेंस की सर्विसेज आती हैं, सब कुछ आता है, उनको तो मालूम होगा. अविरल मलिक साहब भी हमारे साथ हैं. He is also joined us. Wonderful, wonderful, Dr. Malik. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच. सो कपिल श्रीवास्तव साहब जी, पहले आप, क्या यूपी में इतना धर्मांतरण हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इसको प्रायोरिटी पर लेना पड़ गया? कपिल श्रीवास्तव साहब फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, सर प्लीज. कपिल श्रीवास्तव भी बैठे हुए हैं. धर्मांतरण अगर हो रहा होता तो शायद हम पर भी प्रयास हो जाता जी, लेकिन हम लोग जय सिया राम वाले लोग हैं. सर आप इम्पोर्टेंट नहीं है सर. इसका मतलब यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब ये हुआ आपको इग्नोर किया गया है सर. ये तो डूब मरने की बात है, शर्म वाली बात है सर. ये बहुत देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय जी, लेकिन उन हिंदुत्व से कोई लेना देना जी, क्योंकि जो हिंदुत्व है वो विश्व बंधुत्व की भावना पे कायम होता है. किसी के भी अधिकार और अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता. और योगी जी अगर कहते हैं डेमोग्राफिकल चेंजेस उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो वो आंकड़े वो बता दें अपने कि किससे उन्होंने जान लिया. और दूसरा, अगर धर्मांतरण हो रहा है तो 8 साल से सरकार किसकी है, इसके लिए जवाबदेह कौन है जी. और साथ ही साथ लव जिहाद से लेके तमाम स्पेशल कानून आपने बना दिए. इसके सेक्शन पहले की आईपीसी में यानी बीएनएस के अंदर पहले से भी थे. बावजूद उसके बाद आपने लव जिहाद पे एक कानून भारत में उत्तर प्रदेश में लेकर के आए, और उसके बाद भी आप नहीं रोक पा रहे हो. ना लव जिहाद रोक पा रहे हो, ना धर्मांतरण रोक पा रहे हो, जैसा कि आप कह रहे हो.
लेकिन हमारे मोहल्ले में तो एक भी आदमी अब तक हिंदू से मुसलमान नहीं हुआ, हमारे जानने में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं हुआ, कोई अगल बगल का पड़ोसी नहीं हुआ। अब पता नहीं कहाँ से इनको सर मिल कपिल जाते श्रीवास्तव हैं। साहब, मैं और आपसे एक उसके बाद चीज होता पूछना क्या चाहता है? हूँ, एक छोटी चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ सर। गोरखपुर वॉज वेयर सहारा स्टार्टेड फ्रॉम। सहारा शुरू हुआ गोरखपुर से ही। हमारे सहारा श्री वहीं थे। मैं तो 8-9 साल तक सहारा में ही था। आई वॉज द हेड ऑफ 2 न्यूज चैनल्स इन सहारा, सहारा समय मुंबई एंड सहारा समय एनसीआर। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि ये हम लोगों ने काफी देखा है। केरल में देखा धर्मांतरण हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। उड़ीसा में देखने को मिला, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत मिला। मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल बेल्ट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो ट्राइबल बेल्ट है ना, जो वहां पर है, गढ़चिरौली में थोड़ा बहुत है। अब तो खैर गढ़चिरौली में भी अब बंद हो गया बिल्कुल। वहां तो खैर क्रिश्चियन मिशनरी जा ही नहीं रहे। तो बट मैंने कभी सर उत्तर प्रदेश में कभी मैंने सुना नहीं। मतलब आई एम एट अ लॉस। तो आई थॉट मे बी यू कुड टेल अस कि कहीं क्या कानपुर में, कहीं इटावा में, कहीं बलिया में, कहीं और किसी ऐसी जगह पर हो रहा हो शायद। सर आप बताएंगे क्या? कहीं कहीं आपने सुना है कपिल श्रीवास्तव साहब कि किसी का धर्मांतरण हुआ हो? हमें तो नहीं सुनने में आया जी हमारे। बताए तो कि हमारी तो सारी रिश्तेदारियां ही लगभग उत्तर प्रदेश में, जी और गोरखपुर में भी है, बलिया में भी है, लखनऊ में भी है, बनारस में भी है, इलाहाबाद में भी है। किसी के अड़ोस पड़ोस से ये बातें नहीं आती कि हाँ कोई हो रहा है। और अगर धर्मांतरण हो भी रहा है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कपिल श्रीवास्तव को लगता है कि हमें फला धर्म में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज अगर सुन करके होते हैं तो ये तो संवैधानिक है। जी आप ये कहिए कि गैर कानूनी तरीके से, तो गैर कानूनी तरीके से कानून का शासन किसका है? योगी जी का है। और उसके बाद भी अगर हो रहा तो उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके रहते हुए, हिंदू पोस्टर बॉय के रहते हुए, जिसकी पूरी राजनीति डेवलपमेंट छोड़ करके उत्तर प्रदेश में केवल डेमोग्राफिकल चेंजेस पे ही आप बात करना चाहते हैं, तो मुझे आप बता दीजिए कि कहाँ हो रहा आपकी सरकार के रहते हुए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार कर क्या रही है? इतने कानून आपने बना लिए, उसके बाद भी अगर अवैध धर्मांतरण आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अपन आपके ही धर्म से एक बौद्ध धर्म निकला। आखिर कारण क्या था कि बौद्ध धर्म जो है वो विश्व के अंदर सनातन को पीछे छोड़ दिया? भाई, सबसे ज्यादा तो इस समय बौद्धिस्ट ही है देशों में, अगर आप देख लें। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सनातन के पतन के कारण जो मनुवादी व्यवस्था रही है, उसके लिए दोषी कौन है? आखिर आप अपने में पुनर्जागरण काल क्यों नहीं किए? आप उनको भी जोड़ते रहे और जोड़े रखे, लेकिन मंदिर दर्शन नहीं करने दिया। किसी ब्राह्मण पे उसकी छवि नहीं आनी चाहिए थी, आपने झाड़ू बांध दिया, आपने हाथ में डफली पकड़ा दिया। आपने मानव सेवार्थ धर्म का पालन ना करके दूसरे धर्म के लोगों ने मानवता की सेवा करके उनको लूट लिया, उनके मने खुशी से उनको लूटा, और वो चेंजेस हुए। तो हम तो ये कह रहे हैं ये तो संवैधानिक है। लेकिन अगर कहीं पैसा दे करके हो रहा है, कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोई सी ताकत से कराया जा रहा है, किसी को डरा धमका करके कराया जा रहा है, तो ये अवैध तरीका है। और हमें उत्तर प्रदेश सरकार बतावे कि अब तक उसने कितने गैर कानूनी रूप से हुए धर्मांतरण पे एफआईआर दर्ज किए, कितना विचारण किया, कितना कन्विक्शन किया। हमारे एडवोकेट, अवरील मलिक साहब बैठे हुए हैं, अभी ये मैं बताइए। मैं आपसे पूछता हूं एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, ये किंग जॉर्ज वाला केजीएमयू वाला मैटर क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बात यह है कि आप ज्यादा ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज और संस्था के पीछे पड़ जाओगे कि आप रिलीजियस कन्वर्जन करो, अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल रन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, विल एविक्ट देमसेल्फ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसटीएफ प्रोब, ये क्या है? एग्जैक्ट स्टेटस क्या है श्रीवास्तव साहब? देखिए, सीधे एग्जैक्ट आप चीजों को समझिए कि यहाँ पे जानबूझ के हिंदू मुस्लिम को पॉलिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिलीवर करने के लिए जमीन पर कुछ नहीं। इसलिए वो अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। हम एक बात कह रहे हैं कि अगर किसी डॉक्टर का धर्मांतरण हुआ, वो हिंदू रही थी मान ली, तो क्या जो डॉक्टर ने किया या जो डॉक्टर का हुआ वो अबोध थे? उसको नहीं मालूम था कि धर्मांतरण का मतलब क्या होता है? या हम शादी किसी से कर रहे हैं और बाद में ना बने
कहे साहब हमसे तो ये धर्म छुपा करके शादी कर लिया। एक डॉक्टर ये बात कह पाएगा क्या? क्या अनपढ़ है वो, अंगूठा टेक है? और उस ऐसी चीजों को आप तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट 0 है आपकी, सिद्ध नहीं कर पाते। भाई दो बालिग लोगों का प्रेम करना, दो बालिग लोगों के प्रेम में प्रेम विवाह करना में कहीं जुर्म तो है नहीं भारत में। अगर किसी हिंदू लड़के ने किसी इस्लाम की लड़की से, या किसी इस्लाम के लड़के ने किसी हिंदू की लड़की से शादी कर ले और उसके बाद जब आपस में ना बने तो आप एक इल्जाम लगा दीजिए साहब ये हमसे अपना धर्म छुपा करके किया था। अरे वो डॉक्टर रेहान लिख रहा है, कहां से धर्म छुपा लिया था? उसकी डिग्रियां वही है, डिग्री में भी वो कोई और हिंदू बन गया था। तो देखिए ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मुद्दा, डेमोग्राफिकल चेंजेस और तमाम इस तरह की बातें और धर्मांतरण की बातें कह करके जो सनातन के अनुयायी हैं उनको धर्म भीरू बनाया जाता है, उन पे धर्म की चाशनी चढ़ाई जाती है, उनको विकास से दूर हट करके सिर्फ कवायद ये करा जाता है कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पोस्टर बॉय हैं हिंदुत्व के, उसके बाद भी हिंदुत्व खतरे में है। और अगर उसके बाद भी हिंदुत्व खतरे में है तो इन दोनों लोगों से मैं इस्तीफा मांगता हूं, ये लोग इस्तीफा दे। लेकिन बड़ा अजीब है, मतलब वेरी वेरी स्ट्रेंज। इन एनी इवेंट अगर कोई बालिग है, अगर 18 साल से ऊपर है उम्र, तो आप किसी से भी जब मर्जी शादी कर सकते हैं, जो मर्जी धर्म अपना सकते हैं। जैसे आज मैं आरकेबी शो करता हूं, मेरा नाम आरकेबी है। कल अगर मैं ये कहूं कि भाई कल के बाद मेरा नाम हो जाएगा क्या रहीम खान बजाज, वैसे बजाज जो होती है मुसलमान जात भी होती है हम लोगों में, BAZAZ, वो जितने कपड़े वाले होते हैं सब अपने आपको बजाज बोलते हैं। तो हु कैन स्टॉप मी? क्यों कपिल श्रीवास्तव साहब? Tomorrow, suppose I want to become a Muslim, how can you stop me? You can't. जैसे AR रहमान साहब हैं, उनका नाम दिलीप हुआ करता था, दिलीप। वो एक बार किसी उधर सूफी दरगाह में गए, बहुत इंप्रेस हुए, उसके बाद अपनी माँ को भी लगे वहां पे, एंड ही कन्वर्टेड। और एक हिंदू ज्योतिषी ने बाय द वे उनको उनका नाम दिया। उनका कहा कि तुम्हें क्या नाम रखोगे, रहीम रखोगे, रहमान रखोगे? तो मैं रहमान रखूंगा। दैट वाज गिवन बाय हिंदू एस्ट्रोलॉजर टू हिम। No, he is very happy. So how can you stop people? I don't understand this anyway. मेरे दिमाग में घुसती नहीं है बात वैसे। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे यहाँ मुंबई में, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, और केरल में ये पाया गया कि एक कंस्पिरेसी के तहत मुस्लिम लड़कों को पैसे दिए गए, उनको बोला गया हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको हम इस्लाम में लाओ, एक एक के आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कुछ पाया गया है। जैसे आप बोल रहे हैं उसके खिलाफ एकदम एक्शन लीजिए। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपको क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो आपके पास तो तमाम गुप्तचर विभाग हैं, इंटरसेप्ट कीजिए, वो पैसे इंटरसेप्ट कीजिए। आखिर उनको वो पैसे जा रहे होंगे ना हवाला के माध्यम से। तो खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। देखिए PFI पे आरोप इन्होंने किसान आंदोलन में लगाया जी, जो एक आंदोलन था उसमें इन्होंने लगाया। तमाम आंदोलन आते हैं, PFI आ जाता है, उसके बाद PFI गायब हो जाता है, ना बैंक डिटेल्स पता चलते हैं, ना बैंक के अंदर ना कन्विक्शन पता चलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल इसको एक एजेंडा बना के प्रोपेगेंडा सरकार चलाती है, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं। बड़ा अजीबोगरीब मसला है, वेरी वेरी स्ट्रेंज, डोंट यू थिंक? अब डॉक्टर अविरल मलिक, आप बताएं सर। अविरल मलिक साहब, ये बहुत सामने बात आई थी, एंड वी ऑल्सो नो हु दे आर। अविरल मलिक साहब, मैं आपके सामने बात रखता हूं, जो एक्चुअल कंस्पिरेटर्स हैं, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन पॉलिटिशियन हैं, सबको मालूम है। मुंबई में आज तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। आपकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है सर। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक एक को पकड़ के आप जेल में डालेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कौन पैसे दे रहा है। डॉक्टर मलिक, धर्मांतरण के लिए कहां से पैसे आ रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है, एक एक बंदे को कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने हिंदुओं को आप बनाएंगे मुसलमान, आप मुझे बताइए। आज तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर मलिक प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आपके सवाल का बिल्कुल निश्चित रूप से जायज है, और उसके साथ साथ कपिल श्रीवास्तव साहब बैठे हैं या इनके द्वारा बात की गई, मैं समझता हूं इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। कोई हिंदू है, अगर वो मुस्लिम से शादी करना चाहे, मुस्लिम हिंदू से करना चाहे, इसमें किसी रूप में आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंटेंशनल जो कन्वर्जन कराया जाता है, जबरन
बहला फुसला करके धर्मांतरण जो कराया जाता है, मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से गलत है और 100% इलीगल है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। अगर कोई किसी रूप में दबाव बनाता है धर्मांतरण के लिए या शादी विवाह के लिए दबाव बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और उसके साथ साथ 100% इलीगल है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और अगर इस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां सामने आते हैं या आएंगे तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और संविधान सम्मत की भी जानी चाहिए। और जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां के विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है और राज्य सरकार अपने, मैं समझता हूँ कि उनके हाथ में पुलिस है, अपने आधार पर डिसीजंस लेती है। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश की बदनामी की चर्चा हो रही थी और उत्तर प्रदेश में ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है की चर्चा हो रही थी। अगर कहीं होगा तो कार्रवाई हो जाएगी और हो जानी चाहिए। अगर कहीं भी होगा तो कार्रवाई होगी, 100% होगी और होनी चाहिए। कानून ये कहता है और कानून को 100% इम्प्लीमेंट किया जाएगा और निश्चित रूप से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होगी जो भी इस प्रकार के सामने आते हैं। डॉक्टर मल्लिक जी, यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग, आप हमेशा राहुल गांधी जी को ब्लेम करते हो, अखिलेश यादव जी को ब्लेम करते हो कि यू आर सीक्रेटली मीटिंग चाइनीज डेलीगेशन के साथ आप मिलते हो। अब आज खुलेआम चाइनीज डेलीगेशन आरएसएस हेडक्वार्टर्स जा रहा है नागपुर में एंड दे हैविंग डेलिब्रेशंस विद आरएसएस। हाउ इज आरएसएस कनेक्टेड? आरएसएस का क्या रोल है? ऐसे विदेशी ताकत, विदेशी डेलीगेशन जो खास करके चाइना का और इंडिया हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, वो आके आरएसएस से मिलना, तो जब आप राहुल गांधी जी पे उंगली उठाते हो और आरएसएस से मिलने वाले क्या, हाउ डज चाइनीज डेलीगेशन मीट द आरएसएस? डॉक्टर मलिक जी, नहीं देखिए, डेलीगेशंस आते हैं जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा हम अखिलेश जी को या राहुल जी को ब्लेम करते हैं, हम राहुल जी को कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करते हैं और नेहरू जी को हम ब्लेम कर देते हैं, तो कह दिया जाता है कि नेहरू जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, नेहरू जी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि जिस पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी आते हैं उनके संस्थापक नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े विरोधी थे नेहरू जी की विदेश नीति के और नेहरू जी की रक्षा नीति के। और उसके साथ साथ जो चीन पे स्टैंड था नेहरू जी का, उसके सबसे बड़े मुखर विरोधी थे नेताजी। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। हम ब्लेम तथ्यों के आधार पर करते हैं। एक और चीज है जो कांग्रेस, देखिए कपिल जी अभी मना भी कर रहे हैं, मेरे पास सारे कागजात वगैरह सब मौजूद है, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और जहां तक विषय लोहियावादी होने का, तो आज के समाजवादी हो सकते हैं, लोहियावादी नहीं है। लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ रहा, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं ये भी याद रखना जरूरी है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस ने किया। 1975 से 77 के मध्य में नेताजी को जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। और कपिल श्रीवास्तव जी जैसे लोग विधानसभा का इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए जो फीडबैक नीचे से जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन ना रहे, गठबंधन टूट जाए। तो ये गठबंधन तो टूटने जा रहा है। अभी खैर इनका अपना अलग विषय, सर सवाल का तो जवाब दो। सर आप कहां घूम गए? एक एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है वो। अविनाश मलिक जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं यार, आप कहां घूम गए सर? सवाल का तो जवाब दो ना। दत्तात्रेय होसाबले साहब के साथ आज एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन मिला है। अब जब राहुल गांधी जी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते तो आप देखो धोखेबाज, पता नहीं क्या 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 देश के दुश्मनों के साथ सीक्रेट डील देखो क्या है वो, जॉर्ज सोरोस की पता नहीं क्या है वो है। अब ये तो ओपन नहीं मिल रहे हैं यार, आप मुझे बताओ। और नागपुर में जाके वाई क्या जरूरत पड़ गई? चाइनीज डेलीगेशन यहां पर आ गई। अब आप बताइए ना सर, अब ऐसे क्यों मिले? अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूं, लेकिन आप, क्योंकि मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं सर, लेकिन बताना आपका अधिकार है, आप बताइए। आपने कहा कि आखिर क्यों मिले, देखिए जहां तक विषय चाइना का, बिल्कुल देखिए जहां तक विषय चाइना का, चाइना की अगर बात कर जाए तो वो नेबरिंग कंट्री है, इस चीज को भी याद रखना चाहिए। अब बहुत से लोग बाद में भी सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि डेलीगेशंस क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, तो नेबरिंग कंट्री है नंबर 1, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी चीज ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, आज का जो एक तरीके से चाइना के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है आज के समय में अच्छी हो रही है, वो भी सबको स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि भारत एक मजबूत राष्ट्र है, सब भारत के साथ समझौता चाहते हैं, जुड़ाव चाहते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए कि हमारी केंद्र सरकार से भी, तो केंद्र सरकार से भी मजबूती के साथ अब टॉक्स होते हैं, वो भी सबने देखे। और रही बात एक्सचेंज ऑफ आइडिया की, तो निरंतर होते रहते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कोई किसी रूप में दो राय नहीं है।
और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है अरुण सिंह जी, उस फोटो में जो डेलीगेशन की फोटो है उसमें वो भी नजर आ रहा है। और ये अखिलेश जी ने पोस्ट भी किया है, अखिलेश जी का वो मैंने पोस्ट भी देखा है, उन्होंने फेसबुक और शायद एक्स पे पोस्ट किया है सवाल पूछते हुए। तो सवाल पूछ सकते हैं, इनका अधिकार है सवाल पूछना, इसमें कोई दुराय नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन जहां तक विषय है एक्सचेंज होने का आइडिया कि वो होना चाहिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। अब्बास अंसारी, आई वांट टू आस्क यू, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया, क्या ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का कैन से लाथाड़ना कि यू कांट कीप अ पर्सन, गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज है, इंटरिम बेल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते थे, करते हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का, हाई कोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सम्मान करना वो हम करते थे, करते हैं। जुडिशरी का सम्मान सदैव करते रहेंगे। और उसके साथ साथ जो जहां तक विषय न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका जो भी करता है निश्चित रूप से वो सम्मान का पात्र है। लेकिन जहां तक विषय है कानून व्यवस्था का, वो बेहतर बनाना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की दायित्व होता है, वो कार्य निरंतर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बोलूं सर, डॉक्टर मलिक, अगर आपकी इजाजत हो, अविरल मलिक साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, चाइनीज डेलीगेशन, ये प्रोग्राम जो है 1 साल पहले तय कर लिया गया था कि चाइनीज डेलीगेशन यहाँ पर आएगा, भारतीय जनता पार्टी से भी मिलेगा और आरएसएस से भी मिलेगा। और अभी क्या हुआ है शायद लोगों को मालूम नहीं है, मैं बता दूं सर, ऑफिशियली और आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, लद्दाख में क्या हुआ है कि तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो टेरिटरी थी इंडिया की, जो बीच में कोविड के आसपास जब हमारे वो बच्चे मरे थे गलवान में, वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने वापस कर दिए। ये भी आपको बता दूं, ये उसके एवज में है। चाइना हैज रिटर्न दैट टेरिटरी। वो जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स थे जहां पर हमारे लोगों को बड़ी मुश्किल पड़ रही थी आगे जाने में, क्योंकि चाइनीज वहां खड़े हो जाते थे, अब उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आपकी टेरिटरी है, हमने गलती से ले ली थी, आप ले लीजिए। वी हैव टेकन दैट ओवर, सो कंग्रेचुलेशंस। ये जो डेलीगेशन यहां पर आया है, ये इसलिए भी आया है, इसके लिए हम लोगों को वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कपिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मलिक और संजय द्विवेदी जी, हम लोगों को ट्रंप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जो ट्रंप साहब ने अटैक करना शुरू कर दिया चाइना पे, रशिया पे, बाकी सब पे, अब चाइनीज को भी मालूम पड़ गया है कि हिंदुस्तान के बिना उनका काम नहीं चलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे हैव कम हियर फॉर इम्प्रूव्ड रिलेशंस। आगे भी आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो लैंड है हम लोग क्लेम करते हैं, पूरा शायद नहीं मिलेगा लेकिन आधे से ज्यादा मिल जाएगा वापस, बिकॉज द चाइनीज नाउ हैव नो चॉइस। और ऊपर से उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका सत्यानाश हो गया है। चाइनीज हैव लॉस्ट समवेयर अराउंड, आई टेल यू, $49 बिलियन, $49 बिलियन का लॉस हुआ है चाइना को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। इसलिए भी ये डेलीगेशन यहां पर आया है। और इसके लिए कपिल श्रीवास्तव साहब, शायद आपको मालूम नहीं होगा, पता नहीं, आप तो बहुत जानकार हैं, जरूर मालूम होगा आपको, और हो सकता है कि शायद अविरल मलिक जी को भी ना मालूम हो। सर, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। देयर हैव बीन कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द आरएसएस। बैकडोर कॉन्टैक्ट्स हैव ऑलवेज बीन देयर, और उससे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है अभी हिंदुस्तान को और चाइना को। बोथ हैव बिकम सेंसिबल। ये आपके सामने मैं ये दर्ज करना चाहता हूं। लेट मी गो टू संजय द्विवेदी साहब। संजय द्विवेदी साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आरएसएस को मिल रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डेलीगेशन, अब आप बताएं सर इसके बारे में, द्विवेदी साहब। देखिए, पहले तो कल महाराष्ट्र में जो चुनाव है जी, मैं जनता से जरूर अपील करूंगा कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां देके उसको पूरा नहीं किया, ऐसे लोगों को देखें और अधिक से अधिक संख्या में निकलकर जी 29 पंचायत और बीएमसी में अपना वोट दें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी सेवा निरंतर करता रहे जी, जिसमें कोई फर्जी जुमले ना फेंके, ना झूठ बोले, ना फर्जी बातें करे जी। अब मैं आता हूं सर फडणवीस जी के ऊपर। शिवसेना का 30 साल गठबंधन रहा और लगभग हर गठबंधन में बीजेपी हमारे बीएमसी में साथ थी। पिछली बार जो बीएमसी चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था जी, अलग अलग लड़ा। लड़ने के बाद जो हमारी सीटें आई उसके बाद बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के
सपोर्ट से हमको मेयर बनाया गया था हमारा। जी जी आज आज हमारे फडणवीस जी कह रहे हैं कि साहब करप्ट पार्टी है, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी करप्ट पार्टी है। उनके एक नेता कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का घोटाला किया, करप्शन किया इन्होंने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब हमारी 2022 में भंग हो गई थी, 7 मार्च 2022 को बीएमसी जब भंग हो गई थी, उसके बाद अधिपत्य सरकार का रहा उस पे, और जो उनकी एफडी थी, कितने करोड़ की एफडी तुड़वाई गई उसमें? 92,000 की थी, 91 या 92,000 करोड़ की। जी 92,000 करोड़ की जी, और आज की तारीख में 79,000 करोड़ यानी 89,000 करोड़ की रह गई है। जी 12,000 मैं करोड़ यही खर्च कह रहा हुए। हूँ, जो पैसा शिवसेना उद्धव ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व ने बीएमसी को जमा कराया था, उसके कार्य के लिए एफडी बनवाई थी, उसको सरकार ने तोड़वा लिया। जी आज आरोप किस पर लगा रहे हैं? माननीय उद्धव ठाकरे पे लगा रहे हैं, यूपीटी पे आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, आप पहले तो चुना भ्रष्टाचारियों में साथ क्यों दिया? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ ना, अगर इतने करप्ट थे तो 3 साल आप संघ में क्यों रहे? 3 साल आप संघ में रहे, फिर 5 साल जब हमने गठबंधन करके नहीं बीएमसी में लड़े, फिर भी आपने हमारा साथ दिया, तो हम इसका भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो लेकिन सर अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी जो विश्लेषण आया है हर जगह से, उसमें यह है कि तकरीबन हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है कॉर्पोरेशन में। क्या हुआ, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब के पास अभी वो सामर्थ्य नहीं बची जो कि पहले हुआ करती थी। मे बी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मनी, मे बी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कार्डर्स, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। लेकिन आज की तारीख में जो माहौल यहाँ पे दिख रहा है, मुझे मालूम नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है, माहौल जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि बीजेपी बहुत आगे है। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए जनता है, जनता जिसे भी चुने, जिसको रखे, वो जनता के ऊपर डिपेंड है, ऐसा थोड़ी ना है। भाई 15 साल पहले कहाँ सरकार रही, इसके बाद आपकी सरकार बन गई, अब बीजेपी सरकार बन गई, यूपी में 30 साल से कांग्रेस नहीं है, तो जनता डिसाइड करेगी ना हम किसको चुनेंगे। उस पर हमारा कोई मतभेद नहीं है और कोई मतमुटाव नहीं है। लेकिन जो बात हम कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट बात कहना चाह रहे हैं कि जब आप साथ थे तो हम भ्रष्टाचारी नहीं थे, करप्शन में नहीं थे हम। जब हम साथ से अलग हो गए तो हम भ्रष्टाचारी बन गए। ये किस तरह की नए सिद्धांत है, किस तरह की नैतिकता है, किस तरह के तरीके हैं, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आए। अब आप देखिए योगी जी, इनका जो भी भाजपा का जो भी रहता है, वो लफ्जियात, धर्मांतरण। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कहाँ लफ्जियात हो गए और कहाँ धर्मांतरण हो गए। अगर हो भी रहे हैं, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, तो अभी तक शांत क्यों बैठे हुए हैं? उसकी सूचना जनरल देने की क्या जरूरत थी? और जनरल आपने दी तो आपको बताना चाहिए था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 100 धर्मांतरण हुए, जिनको मैंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किसी को नहीं किया और धर्मांतरण हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं फैलानी चाहिए। आपने जो भी गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी आपने पूरी नहीं की। ठीक है, आपने जो बात कही, द्विवेदी जी, आपका उनका सपोर्ट आ रहा है, यूबीटी का प्रॉब्लम किधर है? द्विवेदी जी, मैं समझाता हूं आपको। यूबीटी का प्रॉब्लम यह है कि महिला सशक्तिकरण के आगे आप झुक गए। महिला सशक्तिकरण जो 1500 रुपीज लाड़की बहन स्कीम था, वो एक सक्सेस रहा, और पूरे जितने मराठी मानुस और मराठी वुमन जो है टोटली उस चीज में एकदम एक्सेप्टेबल हो गए। और सरकार जो है, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार लाइक करने लगे कि हमारे लिए कुछ किया। अब ये 1,500 रुपया बनने वाला लखपति दीदी, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने और ये एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा किया है। अब ये 1,500 का प्रॉमिस इन्होंने अब तक फुलफिल किया है, और भले इन्हीं को जो 1,500 दिया हूं, अब इनको लखपति दीदी बनाएंगे। 50 लाख महाराष्ट्र में ऑलरेडी लखपति दीदी बन गया। तो आपको यहां पर अटैक करना पड़ेगा। अगर जीतना है मुंबई, नासिक, नागपुर, तो आपको महिला सशक्तिकरण की ओर देखना पड़ेगा। क्या आपके फॉर्मूला है? बोलिए द्विवेदी जी। प्रदीप जी, मैं यही बात तो आपसे कहना चाह रहा था अभी तक कि आप कहते साहब मैं विकास कर रहा हूं। जितने बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछे, वो कह रहे साहब हमने बिहार में विकास किया, महाराष्ट्र में विकास किया, तो ये पैसे बांटने की जरूरत क्यों आती है सर? पहले मैंने सुना था कि चोरी छिपे पैसे बांटे जाते थे। 20-22 साल पहले मैं सुनता था कि फलानी जगह फलाने मोहल्ले में पैसे बढ़ रहे, उस जगह पैसे बढ़ रहे, चुनाव वाले दौड़ भी जाते थे, पुलिस जाती थी, गिरफ्तार करती थी। अब तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब तो खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं सर। अब तो खुलेआम पैसे 10,000 रुपए आपने बांट दिए। आचार संहिता के बाद कोई पैसा नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बिहार में आपने 10,000 रुपए आचार संहिता के बाद बांट दिए।
इस तरह की जो चीजें ये हो रही हैं, चुनाव शांत बैठा हुआ है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप कहते हैं साहब आरएसएस से चाइना वाले राहुल गांधी जी से मिले और आपने खूब शोर मचाया, मैं भी डिबेट में रहता था, खूब शोर मचाते थे, खूब शोर मचाते थे। आज वो आरएसएस से मिल रहा है, क्या बात हुई पहले क्या भी मिल नहीं चुके हुई हैं। ये तो हमें नहीं मालूम ना आपको मालूम है इंटरनल क्यों मिले, या कांग्रेस मिलती थी चाइना वालों से, क्या उनकी बातचीत होती थी, किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। आरएसएस से मिले, क्या बात हुई, किसी को नहीं मालूम। तो अगर आरएसएस मिल रहा है तो गुनाह नहीं है, तो अगर कांग्रेस मिल रही है तो कौन सा गुनाह हो गया? इसमें एक फर्क है सर, जो हम ईडी की बात करते हैं, सुन लीजिए सर, ठीक है आपकी बात सही है सर, उन्होंने गलवान दे दिया, पूरा चाइना आरएसएस कहने में दिए जा रहे, अच्छी बात है सर, तो आरएसएस को बैठा दीजिए ना, फिर मोदी जी की जरूरत ही नहीं है सर। सर मैं कुछ और बोल रहा हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए ना। हमें गलवान मिल अरे जा रहा द्विवेदी है, जी सुन सब तो मिल जा लो। रहा है, तो मोदी जी की जरूरत क्या है? अरे द्विवेदी जी, सबसे पहले आप तीनों लोगों को, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए ना। आप मैं दूसरी बात सर बता आप रहा हूं। तीनों लोगों को एक मिनट, एक समय आधा सेकंड बस, आप तीनों लोगों को सबसे पहले पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से संक्रांत की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है सर। दूसरी चीज क्या है, और छुट्टी है, यूपी में छुट्टी है और सर। यूपी में छुट्टी भी है। अब दूसरी चीज क्या है, जरा सुन लीजिए द्विवेदी जी, उसके बाद आप बोलिए, शौक से जितना बोलना बोलिए, आपका चैनल है सर। क्या है कि कांग्रेस के लोग जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिले, दे डिड नॉट अनाउंस इट, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, ये बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग मिले थे। प्रॉब्लम ये यहां आती है, यहां पर जो चाइनीज डेलीगेशन दूसरी बार आई है आरएसएस से मिले, ये दूसरी बार गए केशव कुंज में मिलने के लिए, यहां पर ऑफिशियली आए, सबके सामने आए हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, अगर आप किसी चीज को छुपाते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया था कि हम लोग मिल रहे हैं, अगर अनाउंस कर देते कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब आप देखिए द्विवेदी जी बोलिए 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 आज बोलिए। ईडी के बारे में सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर। ईडी की हम लोग बुराई करते हैं हमेशा, सब ईडी चुनाव आयोग सीबीआई सब अंडर कंट्रोल है सरकार के। 12 साल तक जमानत पर रिया, कौन चिल्ला रहा था सर? सोनिया गांधी जमानत पर रिया, राहुल गांधी जमानत पर रिया, Correct. जमानत पर रिया। Yes. क्योंकि मोदी जी जब आए, उन्होंने देखा अगर हम कांग्रेस को अटैक कर दें और दो लोग अटैक कर दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अटैक कर दें, तो समझ लीजिए तो हम इनको कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करने का प्रयास भी किया, क्योंकि पूरा मीडिया उसी तरफ चलने लगा। आज की डेट में पूरा मीडिया उधर चलने लगा। तो आज क्या हुआ, अब जमानत पर रिया आएंगी नहीं, आप पूछे बीजेपी वालों से। तो ये ईडी की क्या है, ईडी 12 साल से एक केस चला रही थी और निरंतर पूछताछ हो रही थी। किस बात की पूछताछ हो रही थी? मैं ये कहता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये कि इस तरह की सरकार 2014 से पहले कोई सरकार नहीं थी, चाहे इंदिरा गांधी के समय रहा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय रहा हो, चाहे माननीय राजीव गांधी का समय रहा हो। राजीव गांधी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की देखा कि बीमार है और उनको अपने अमेरिका जो जा रहा था हमारा प्रतिनिधिमंडल, उसमें इलाज कराने उनको भेजा, और उन्होंने मरते दम तक ये नहीं कहा कि हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया है। इंदिरा गांधी और तमाम प्रधानमंत्री रहे जिनके हमारे विपक्ष से बड़े अच्छे संबंध रहते थे, जबकि उस समय तो बड़ा एक छत्र रहा था कांग्रेस का। कांग्रेस चाहती तो आज जैसे आज बीजेपी वाले इनको गिरफ्तार कर लो, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लो, संजय राउत को गिरफ्तार कर लो, अनिल देसाई को गिरफ्तार कर लो, झारखंड में गिरफ्तारी कर लो। जो गिरफ्तारी का जो बूम मचाया था इन्होंने, जिस ऐसे व्यवहार चलता है क्या? विपक्ष में जब पश्चिम बंगाल में अभी सरकार नहीं है तो वहां हिंदू मुस्लिम होने लगा, अगर आपकी दूसरी का सरकार नहीं है तो वहां हिंदू मुस्लिम होने लगा। अब आप उत्तर प्रदेश में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो चाहे ना हो, अब आपका उसमें शुरू हो गया कि साहब यहाँ धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद हो रहा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। उसको हमें बताने से क्या क्या फायदा मिलेगा? संजय द्विवेदी और बजाज जी को, प्रदीप जी को बता दिया हमने कि साहब लव जिहाद धर्मांतरण यहाँ हो रहा, उसका क्या मतलब है? तो ये चीजें तो देखने वाली है। अब आप यहाँ देखिए चुनाव, अगर उन्होंने कहा था मेल मुस्लिम होना चाहिए, चलिए यूवीटी ने कह दिया, तो सर इस पे हंसी उड़ाई जा रही है। क्या राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं हुए? क्या उपराष्ट्रपति मुस्लिम नहीं हुए? क्या मंत्री मुस्लिम नहीं हुए? या सांसद मुस्लिम नहीं है क्या? तो उसमें साहब हो गया कि साहब ये तो लंदन मॉडल है, लंदन मॉडल
हो रही बात हो रही है। ये हम बड़ा मुसलमानों के साथ हम बिल्कुल हमारे उनके उसमें आरएसएस मुसलमानों बड़ाई करती है, कोई कहने वाला नहीं है, ना कोई कुछ कहता है। आज अगर हमने कह दिया, अगर अगर कह भी रहे, चलिए बने नहीं बने वो तो बात की बात है, जी। तो कहा भी है तो इसमें क्या किया पता नहीं। तो राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया, सांसद क्यों आते चुन के? अगर सांसद आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे वो, चाहे वो महिला हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो। तो उनकी खत्म कर देनी चाहिए ना, उनकी तो आप खत्म कर दीजिए कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार किसी मुसलमान को नहीं। अगर इतनी बुराई है, इतनी समस्याएं हैं, जबकि हम हमारा जो सिस्टम है वसुधैव कुटुंबकम है, हम वसुधैव कुटुंब में रहते हैं, जहाँ पे जाति पात धर्म इसका कोई महत्व तो नहीं है, ना कोई इसका विषय है। आज सनातन धर्म की बात करते हैं, आप दुनिया की बात करते हैं, तो अगर इस तरह की बात की जाएगी तो हमारी समझ में देश से चले कैसे? ये Right, so let me go to Dr. Aviral Malik. Aviral Malik जो साहब. हमारी झगड़ा लड़ाई है, वो लड़ाई आगे आगे बढ़ती चली So let जाएगी। me go to Dr. Aviral Malik. Aviral Malik साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, अगर मान लीजिए वास्तविकता में कहीं पर भी धर्मांतरण देखा गया है, कहीं पर भी हुआ है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सर। अभी तक क्या होता था, एक्शन होता नहीं था। प्रॉब्लम यह है, समस्या कहां पर आई है कि मानता हूं हो सकता है कि जहां तक सर पूरी हिस्ट्री है उसकी, जैसे आदिवासी हैं, पूरी आदिवासी पॉपुलेशन जो है उनको मिसट्रीट किया गया, मतलब मंदिरों में नहीं आने दिया गया वगैरह वगैरह। सनातन धर्म में जितने लोग हैं हमारे, उनकी भी तो बहुत गलती है ना, ऐसी बात नहीं है। अब जाकर के चेंज हुए हैं, अब विश्व हिंदू परिषद के आने के बाद, बाकी सब चीजों के आने के बाद बहुत चेंजेस आए हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अभी तक क्या होता था, हर जगह पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये 1983 की बात है, 83 में मैं गया था संबलपुर, उड़ीसा में जगह है सर संबलपुर। आप जंगल के अंदर जाएंगे, आप वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ ह्यूज चर्च, इतनी बड़ी चर्च शायद दिल्ली में भी नहीं होगी, वो संबलपुर में है। और वहां जितने आदिवासी थे सब के सब सारे क्रिश्चियन बन चुके थे, कैथोलिक नहीं क्रिश्चियन बन चुके थे। अब वहां पे जब मालूम किया गया क्या हुआ, और पहले वहां स्कूल बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, सब लोगों की देखभाल की गई वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ हुआ, और उसके बाद वहां के सारे लोग बन गए ईसाई। लेकिन किसी भी सरकार ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आज तक नहीं हुआ है सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं या कोई और, भाई इसमें इन्वेस्टिगेटिव तहकीकात तो हम करेंगे ना, क्योंकि 30 साल पहले हिंदू पॉपुलेशन वॉज 84%, टोटल सेंसस में 84% थी। 2011 के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से हिंदू पॉपुलेशन इज डाउन टू 79%। तो सर डेमोग्राफिकली चेंज तो हुआ है। तो इसके ऊपर अमित शाह साहब कहते हैं इसका मतलब धर्मांतरण नहीं हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन घुसपैठ ज्यादा हुई है। तो इसकी तहकीकात तो करनी चाहिए ना, उसमें तहकीकात करने में क्या ऑब्जेक्शन क्या है, आप बताइए सर अविरल मलिक साहब। जी, निश्चित रूप से तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जांच के आधार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो रियलिटी है वो सबके मध्य आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रकार से धर्मांतरण का विषय सामने कहीं भी आता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। अगर इस देश में अब संविधान है तो संविधान का राज स्थापित है, तो मैं समझता हूँ संविधान के हिसाब से ही देश चलना चाहिए। संविधान में सबको स्वतंत्रता है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, और कोई व्यक्ति किसी को प्रेशराइज करके 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे करके और इस लालच के आधार पे अगर वो एक तरीके से रिलीजन को कन्वर्ट करा रहा, तो ये तो 100% इलीगल है, ये तो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, और किया जाता और किया जाएगा, हमारी सरकार तो करेगी, क्योंकि ये कानून कहता है अगर इस प्रकार की हरकत कोई कर रहा है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सर लेकिन इसमें अविरल मलिक साहब, इसमें क्या है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉरेन प्रीचर्स, ये स्पेशली अमेरिका से, मिडिल अमेरिका से, देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हु आर हियर ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ वेरियस चर्चेस, नॉट रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक चर्च का मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो अभी तक तहकीकात की गई है और आईबी की रिपोर्ट्स जो गई हैं, उन्होंने कभी कन्वर्शन नहीं किया है। लेकिन जो बाकी चर्चेस हैं, मेथोडिस्ट हो गए, सेवन डे एडवेंटिस्ट हो गए, बाकी जो अलग अलग प्रीचर्स जो हैं स्पेशली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दे आर स्टिल हियर, और काफी फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, और काफी एनजीओज हैं अभी यहाँ पर भी जो इस काम में सम्मिलित हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बारे में बाला साहब ठाकरे भी बहुत बोला करते थे, तो उसके खिलाफ एक्शन कब होगा सर?
मलिक साहब। नहीं है, बिल्कुल है, बहुत से इस प्रकार के लोग हैं, बहुत से लोग शामिल हैं। मेरे भी संज्ञान में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण था, वो आया था, उसके बाद पुलिस ने उन लोगों पे कार्रवाई की और बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं और इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश या प्रयास करते हैं। और कई रोज लगभग ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आती हैं और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होती है। जिला प्रशासन कठोरतम कार्रवाई पुलिस प्रशासन करता है और होनी चाहिए। और ये लोग 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए दे करके, उन्हें बहला फुसला करके, बहका करके और अजीबो गरीब मनोहर कहानियां उन्हें बता करके अपने एक तरीके से रिलीजन के विषय पे और जबरन धर्म परिवर्तन उनका कराना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गलत है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी सर, चाहिए। यूट्यूब मैं प्रदीप जी, एक सेकंड, इसमें हम दोनों इन्वॉल्व थे। बाला साहब ठाकरे कहते मैं आपको एक और बात बता दूं, सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से अगर बात करी जाए तो ये संजय जी कहेंगे कि बिलोंग करते हैं। अब संजय जी इस विषय बताएंगे कि आगे इन्हें एक तरीके से इनका क्या स्टैंड है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको बाला साहब कि प्रदीप जी ने यहाँ पर तहकीकात की थी। आइडियल है सर अविरल मलिक साहब, प्रदीप जी ने यहाँ पर एक तहकीकात की थी। एक बहुत शख्स है, बहुत विशाल देह के हैं वो जो है नवी मुंबई में एक आश्रम चला रहे थे और बार बार जाकर के हर जगह पर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ क्रिश्चियन प्रीचर। सर, यूट्यूब के ऊपर है, हनुमान जी को गाली देते हुए, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ते हुए उस आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट कराया यहाँ पे। ये तो हमारी सामने देखी हुई बात है सर। ईसाइयों के सामने जाकर के बोला कि तोड़ो इसको। सर, ऐसा तक हो रहा है। मैं आपको मुंबई की बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की। कब की बात है सर? ये 5-6 साल पहले की बात, 5-6 साल पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ जी अगर बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि हिंदुत्व है ना, अविरल मलिक साहब, मुंबई तो सेंटर है, वैसे भी इकोनॉमिक कैपिटल है, इकोनॉमिक राजधानी है, बावजूद इसके बाद इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत से रूरल एरियाज हैं जहाँ सीधे लोग हैं। मुंबई में तो फिर भी सभी लोग एक तरीके से जागरूक हैं, अवेयर हैं, या तो सीधे लोग हैं, गांव के किसान लोग हैं, उन्हें बहका करके उनके परिवारों में जा करके ये इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं, थोड़े बहुत पैसे देते हैं। डॉक्टर मलिक साहब, हिंदुत्व को बढ़ाना, चीन के विषय पे बात आपने की थी, अभी चीन के विषय पे बात आई थी, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है ही कि भाई अगर ये कोई छुपा के मीटिंग कर रहा है तो और एक तरीके से जो सबके सामने, हमारा तो सबके सामने खुली किताब की तरह है, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है ही। या तो डिक्लेयर करके उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडिया के लिए अगर मीटिंग होती है, वो मिलने आते हैं, तो मिलने वालों के लिए सबका स्वागत है, कोई भी डेलीगेशन आए अगर मिलने के लिए। लेकिन वो तो ऑन कैमरा है और बिल्कुल स्पष्ट है, ट्वीट हो रही है खबरें बिल्कुल स्पष्ट। बट यू नो डॉक्टर मलिक, प्रमोटिंग हिंदुत्व इज ठीक है, एजेंडा है आरएसएस और बीजेपी का, आप प्रमोट कर रहे हो। बट एंटी माइनॉरिटी स्टैंड जो बार बार आप ले रहे हो, चाहे वो एनकाउंटर्स में हो, अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपके हर एनकाउंटर कास्ट और रिलीजन बेस्ड है। आगे जाके अभी हाल ही में आजम खान साहब के एक वीडियो सब जगह वायरल है, बोले 3 बड़े गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश में, आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। 3 बड़े गैंगस्टर थे, 2 तो आप एलिमिनेट कर दिए, अब बचा है आजम खान। बट व्हाट ही वाज हाईलाइटिंग इज द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। ओनली आप टारगेट चूज एंड पिक करते हो और उनको एनकाउंटर करते हो। I think that is what Azam Khan साहब said. डॉक्टर मलिक साहब, नहीं देखिए, टारगेट करना, चूज करना और इस प्रकार की हरकतें करना वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। एनकाउंटर देखिए कब होता है, एनकाउंटर जब होता है जब अगर पुलिस टीम की बात कर जाए, जो स्पेशल पुलिस टीम होती है वो अगर जा रही है किसी बदमाश को, अपराधी को पकड़ने के लिए, वो पहले सूचना मिल जाती है, उसके बाद अगर वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गाड़ी में से फिर वो अपना एक तरीके से जो यहाँ कट्टे होते हैं या जो भी असला उनके पास होता है उससे गोली चलाते हैं। तो बचाव में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है या दूसरों से चला देते हैं। पुलिस गोली अतीक अहमद लाइव पूरे दुनिया ने देखा। आप पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके अतीक अहमद को उड़ा दिया, अतीक अहमद और उसके भाई को, यस, अफरोज को। जी बोलिए डॉक्टर मलिक जी। नहीं देखिए, अतीक अहमद का जहां तक विषय है, तो अतीक अहमद की अगर बात कर जाए, जो जिसने जैसे काम किए, निश्चित रूप से कानून के माध्यम से उन्हें वैसी सजा मिले, हमारा तो ये उद्देश्य रहता है। लेकिन जो घटना वो घटित हुई थी, निश्चित रूप से एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण विषय कानून के हिसाब से हुआ कि एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करी जाए और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, उन लोगों के ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में की। सभी लोग पकड़े गए, तुरंत पकड़ लिए थे पुलिस ने।
अगर कोई ऐसी अपराध की एक तरीके से घटना को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से तत्काल वो अरेस्ट होते हैं। आजम खान क्यों डरे हुए और क्यों ऐसे वीडियोस निकाल रहे हैं आजम खान साहब? आजम खान साहब इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी आजम खान जी को अलग करने की कोशिश करते हैं और अलग करने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वो अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बताते हैं, तो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना मामला है, इनका अपना। अब दुख की बात यह है कि दुख की बात हमारे लिए यह है कि कपिल श्रीवास्तव साहब चले गए ना। व्हाई इज आजम खान स्कैर्ड? मैं सुन रहा था आपको, आजम खान क्यों डरे? 27 में टिकट कट रहा है, शायद सुनने में आ रहा है 27 में अखिलेश जी इनके परिवार को टिकट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो नाराज है। क्या बात है सर। बट इज इट अ थ्रेट? कोई है क्या? आजम खान का भी एनकाउंटर होगा जिस प्रकार से वो बयान कर रहे हैं एक एक चीज? नहीं, देखिए जहां तक विषय है आजम खान साहब का, तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, बिल्कुल वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक एनकाउंटर का विषय है, तो एनकाउंटर किसका होता है मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एनकाउंटर होगा उसका जो पुलिस के ऊपर गोली चला रहा होगा। अगर पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस पे गोली चलाएगा और जवाबी कार्रवाई में अगर उसे लग जाती है तो निश्चित रूप से उसका अगर देहांत हो जाता है, एक अलग विषय है, वो भी दुखद है। डॉक्टर मलिक, हम हालांकि चाहते हैं सभी अपराधी जेल जाए और निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से उन्हें सजा मिले, ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन सभी पकड़े जाए और कोर्ट तक पहुंचाना हमारे पुलिस का मुख्य एजेंडा है। डॉक्टर मलिक, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, पता नहीं क्योंकि आप तो मीडिया में इन्वॉल्व हैं, आप स्पोक्स पर्सन भी हैं, क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बाकी जगह से जो खबरें आ रही है उसमें यह है कि भाई सेफ तो हुआ है, उत्तर प्रदेश में सेफ्टी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले स्थिति होती थी वो आज की तारीख में नहीं है, गैंगस्टर नहीं है आज की तारीख में। पहले ये होता था किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, क्या क्या होता था उसको आपको तो मालूम ही है, संजय द्विवेदी जी को भी मालूम होगा। लेकिन सर क्या है कि आज की तारीख में जब भी कोई घटना होती है उत्तर प्रदेश में, भले जो भी हो, जैसे बलात्कार की घटना हुई, अभी 3 बलात्कार की घटना हुई है, एक मेरठ में, एक कानपुर में और एक और जगह पे, पता नहीं आपको याद होगा शायद, कल भी बात करी थी हम लोगों ने इस बारे में। मेरा ये कहना है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 दिन में, 15 दिन में ऐसी कोई 3 घटनाएं हुई हैं, 15 दिन में। पहले ऐसी घटनाएं हर रोज हुआ करती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मीडिया सेल है वैसे बहुत एक्टिव है, आपको फिर ये पूरे आंकड़े देने चाहिए ना भैया। आप रेशियो देखिए ना, पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हो रहा है। आज क्या है कि कोई भी घटना होती है एकदम फौरन धाड़ 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 करके हर जगह पे आ जाता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और एकदम ये कहा जाता है क्या है, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। अगर मान लीजिए किसी का कत्ल हो गया या किसी के साथ बलात्कार हो गया, अब मेरी बात सुनिए, जो भी बड़ी से बड़ी सरकार हो, अच्छी से अच्छी सरकार हो, कोई इस किस्म का इंडिविजुअल क्राइम कहीं हो रहा हो, कोई नहीं रोक सकता। कहां से रुकेगा सर? यू कैन ओनली एक्ट आफ्टर द इवेंट। अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया या कुछ हो गया, उसके बाद पुलिस हरकत में आएगी, इवेंट के बाद ही आएगी। हाउ कैन यू प्रिवेंट अ मर्डर अनलेस एंड अनटिल यू हैव इंफॉर्मेशन बिफोर दैट? तो आपको लगता नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। अब अगर बात कर जाए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है उनके सरकारी निवास में, उन्हीं के सरकारी गार्ड्स के द्वारा हत्या की गई। दुर्भाग्यपूर्ण रहा 31 अक्टूबर 1984 को तो प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, फिर राजीव जी की हत्या कर दी गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब घटना घटित हुई, उसके बाद एक्शन हुआ, एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ तो अगर बात कर जाए, हम तो ये चाहते हैं कि कोई घटना ही ना हो। हमारा तो उद्देश्य ये है किसी प्रकार से घटना ना हो, लेकिन अगर फिर भी होती है तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाती है। और घटनाओं में तो कमी आई है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी सेंट्रल मीडिया का ऑफिशियल हमारा हैंडल हो, या फिर बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल हो, या यूपी बीजेपी का हैंडल हो, उनसे लगातार मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो कंपैरेटिव स्टडी है यूपी के विषय पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी अपराध के विषय पे लगातार जो आंकड़े हैं प्रदान किए जाते हैं, स्पष्टता पूर्वक पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं, मीडिया के समक्ष रखे जाते हैं, और जनता इस चीज को जानती है। उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, अपहरण के मामलों में नंबर 1 पे होता था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट एनसीआरबी के डाटा बताते हैं। जी द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस साहब का कहना है कि उद्धव ठाकरे जी एंटी डेवलपमेंट है, वो विकास बिल्कुल नहीं चाहता और आगे बैठ भी किया, मगर और एक एक आंकड़े देते। आशीष शेलार जी ने आंकड़े दिए, जो मंत्री है महाराष्ट्र में,
उन्होंने कहा जैतापुर का विरोध किया, 25,000 नौकरी वो जॉब्स वो लॉस्ट। नाना रिफाइनरी उनका विरोध किया, 1.5 लाख नौकरी वॉज लॉस्ट। बुलेट ट्रेन को डिले कर दिया, जब 2.5 साल आपके सरकार थे बुलेट ट्रेन का टोटल विरोध कर दिया। 90,000 जॉब्स जो मिलने वाले थे वो डिले हो गए। आगे जाके मेट्रो जो मेट्रो है उसको डिले कर दिया, करीबन 3 लाख नौकरियां वहां से। वधवन, अब वधवन पोर्ट, वधवन बंदर पोर्ट जो इस देश में सबसे बड़ा और दुनिया में टॉप 10 पोर्ट होगा, वहां पर आप भी डिले करने के जो विरोध करते, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। क्या आप डेवलपमेंट विकास विरोधी हो, डेवलपमेंट विरोधी हो? मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ हाँ, उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में बता दूं, विकास दुबे नाम सुना होगा आपने, हाँ, हाँ, चुनाव का था। हाँ 10 पुलिस वालों को एक साथ मार दिया गया। 10 पुलिस वालों को रात में मार दिया गया। भले उसके बाद में इनकाउंटर हो गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर इतनी इंटेलिजेंस अच्छी है तो ये कांड क्यों हुआ है? ठीक है सर, ये मैंने बता दिया आपसे। ये अब्दुल मलिक जी से हमारे जवाब देंगे आपको। मैं ये कहता हूं, अगर उद्धव ठाकरे कहने से अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसके मतलब उद्धव ठाकरे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर फडणवीस जी अगर नहीं कर पा रहे हैं काम ये उद्धव ठाकरे के विरोध के बाद, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसके माने ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कहने। 4 प्रोजेक्ट आप बाहर भेज देते हैं, गुजरात भेज दे रहे हैं आप 10 गारंटी के ऐलान करते हैं, आप बाद में कहते समय पर फंड नहीं है, तो यहाँ भी उद्धव ठाकरे को फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो ये सब चीजें देखिए कहने वाली बात है। 30 साल तक में रहे, आज वो अगर कहें कि उद्धव ठाकरे जो है 5 साल बीएमसी में आखिरी 5 साल में साथ में रहे, और आज जो है सब उद्धव ठाकरे जो है वो करप्शन में लिप्त है या करप्शन कर रहे हैं वो, तो एक जनता कैसे मान लेगी सर? और दूसरी बात एक चीज, सरकार में 5 साल संग में रहे 2014-2019 तक। 2019 में अजीत दादा पवार के साथ उन्होंने सरकार न बनाई होती तो शायद इनका गठबंधन हो जाता, अगर ये बातचीत करने आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले बातचीत करने नहीं आए। उनको लग रहा था कि अजीत दादा पवार को हम कुछ देंगे, समझाएंगे तो हमारे संग में आ जाएंगे, शरद पवार जी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ वही 2.5 साल बाद उन्होंने एक नाथ को तोड़ दिया। ईडी सीबीआई और सब 50 हो गए का लालच देंगे। इसके बाद उन्होंने अजीत दादा पवार तोड़ लिया। कैसे कि तुम्हारे 2000 करोड़ के जो तुम्हारे सीज है संपत्तियां वो वापस हो जाएंगी, जो तुम्हारे ऊपर 70 लाख करोड़ का जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। आज क्या हुआ सर? महायुति बची क्या? अब तो ये बन गई है, अब तो ये स्कूटर बन गई सर। महायुति कहाँ बची? अजीत दादा पवार चले गए सर। अजीत दादा पवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर इतना विकास इनका था तो 1,500 रुपए या 10,000 रुपए या 7,500 रुपए बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है सर? आज सरकार इनकी है, इसका कहने का हमारे पास फंड नहीं है। जैसे लाडली बहन योजना में 3 महीने से पैसा नहीं मिला। चलिए सर, वो तो बात हो गई, नहीं मिल गया सर, 1 महीने का बचा, बाकी 2 महीने का मिल गया सर, 1 महीने का बचा। हाँ तो चलो चुनाव बीएमसी थे ना, इसलिए दे दिया। बीएमसी चुनाव दे दिया, उसमें गड़बड़ कुछ और है। अब दूसरी बात, शिव भोजन थाली जो बात की थी वो चल रही क्या? मुख्यमंत्री 30 बंद 25 लाख नौकरियां थी, किसानों को ऋण माफ करने थे, बिजली बिलों में 30% कटौती थी, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो अगर इस तरह सरकार आपको चलानी है, इस तरह से भ्रमित करना है देशवासियों को, महाराष्ट्र जनता को, और पूछ लूं आपसे, नहीं आप कर सकते हैं ना सर, आपने जो बात जनता भी कही, एक ना दिन समझ जाएगी। 56 साल बाद जनता ने समझा नहीं, अब हम बीजेपी के साथ हैं, अब बीजेपी सरकार बनाए। आपने जो बात कही अभी विकास दुबे एनकाउंटर की बात करी ना आपने, तो सर 2017 से लेकर के 2025 अगस्त तक, 25 अगस्त तक, उसके बाद का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ये यूपी सरकार का ही आंकड़ा है। 2007 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मारा गया। 207, सॉरी नॉट 2007, 207 में 67 मुसलमान थे, 67 मुस्लिम्स, 20 ब्राह्मण थे और 18 ठाकुर थे। ये आंकड़ा है सर। ज्यादातर मुसलमान थे। बात नहीं की मैंने, इनकाउंटर की बात नहीं की सर। इनकाउंटर अच्छा हो गया, इनकाउंटर बढ़िया रहा। मुझे दुख ये लगा कि योगी सरकार में 10 पुलिस वाले मार दिए जा रहे हैं रात में बेचारे घेर के, वो मुझे दुखात्मक है। तो सर ये बताइए कि अभी तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें इतने ज्यादा मुसलमान क्यों हैं? और सबसे कम ठाकुर हैं। ये तो इसका जवाब दे देंगे ना सर। और बीजेपी और उसमें
20 से ज्यादा ब्राह्मण है, अभी तो 3 और हो गए, 23 हो गए, 23 ब्राह्मण है सर। आप ये बताइए, और ठाकुर भी हैं उसमें, कौन कौन से ठाकुर हैं ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इसमें लोड राजपूत होंगे ज्यादा, जो ओबीसी हैं, खैर वो अलग बात है, वो तो उसके अंदर जाना पड़ेगा। अविरल मलिक साहब आप ये बताइए, इतने ज्यादा मुसलमान क्यों मरते हैं एनकाउंटर में? 67 मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड इन एनकाउंटर सर। अविरल मलिक साहब जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मुसलमान क्यों मरते हैं, पर्टिकुलरली एनकाउंटर्स की अगर बात कर ली जाए तो जी। हिंदू का मुसलमान का इस आधार पर एनकाउंटर्स बिल्कुल नहीं होते। एनकाउंटर जो होते हैं, देखिए एनकाउंटर का किसी रूप में उद्देश्य नहीं होता, कोई मरे बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता, ना होना चाहिए ना होता है। उत्तर प्रदेश में कतई उद्देश्य नहीं। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को मैं केवल 10 सेकंड में बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। उत्तर प्रदेश में ये होता है कि हमारा स्पष्ट आदेश है हमारी सरकार का कि किसी प्रकार से किसी बदमाश को, किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी बलात्कारी को खुलेआम ना घूमने दिया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे पकड़ा जाए और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब जब पकड़ने के लिए जाते हैं और वो फायर करता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी आरती उतारेगी और वो फायर करेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए बचाव में, अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन में जब पुलिस गोली चलाती है, अगर किसी को लग जाती है लेकिन तो लोग मर खुश जाता हैं। है, और अगर नहीं लगती है तो बच जाता है। जैसे कैसे करके हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसे बहुत से मामले आते हैं सामने जिसमें कि अपराधी वो गोली चलाता है, उसके बाद वो फरार भी हो जाता है कई बार। वो तो एक तरीके से उस समय की क्या हालात होते हैं उस पर निर्भर करता है, और वो हो सकता है वो फरार हो जाए, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो उसके पैर में गोली लग जाए, हो सकता है वो घायल हो जाए। लेकिन उद्देश्य रहता है, अगर किसी प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए पुलिस गोली चला रही है तो उसकी पैर की ओर चलाई जाए, ये उद्देश्य निश्चित रूप से रहता है। नंबर 2, जहां तक विषय गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर की बात आती है, तो बुलडोजर केवल वहां चलता है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उस पर डेमोलिश करने के लिए बुलडोजर चलता है। उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपल एक्ट भी कहता है ये बिल्कुल लीगल है, केवल वहां बुलडोजर चलता है, बाकी कहीं नहीं चलता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी अपराधी होगा, कोई भी गुंडा होगा, कोई माफिया होगा, किसी भी रिलीजन का होगा, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, किसी भी जात पात संप्रदाय का हो, ब्राह्मण हो, किसी जात से हो, कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। गुंडा गुंडा है, अपराधी अपराधी है, हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, अगर लेकिन कोई यहाँ पर अपराधी एक होगा, चीज है उस पर कार्रवाई सर, होगी और जाति के आधार पे कार्रवाइयां नहीं होती है। यहाँ सर, पर मैं मैं कुछ- एक आंकड़ा दे देता हूँ सर, एक आंकड़ा दे देता हूँ मैंने आंकड़ा दे दीजिएगा सर। मैं- मुसलमान 67, ब्राह्मण्स देखिए, हमारा 20, एनकाउंटर आप ठाकुर एज इन राजपूत 18, जाट और गुर्जर दोनों मिलाकर के 17, यादव 16, दलित 14, ट्राइबल 3, सिख 2, अदर ओबीसीज 8 एंड अदर कास्ट 42। ये है सर। हाँ जी बोलिए सर, द्विवेदी जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं ही कह रहा हूं सर, बुलडोजर चलता अच्छी बात है सर, बुलडोजर चलाइए आप, बिना 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 उसके बुलडोजर चलाइए। सरकार जो सरकार और न्यायाधीश आप ही हो सर, माने आप उत्तर प्रदेश में आप ही हो सर, ना न्यायाधीश जरूरत ही नहीं है। हम तो चलते न्यायालय सब बंद कर देनी चाहिए ना, टोटल फैसला यही दे अविरल द्विवेदी ने यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ अपराधी कोई एक है, कोई एक अपराधी है, उसका एनकाउंटर हुआ तो उसके माता पिता हैं, परिवार उसका है, उसके बच्चे पत्नी है, तो उनको उजाड़ने से मैं तो नहीं समझता सर कोई इंसानियत है। उनको उजाड़ने का मतलब है, उनको उजाड़ने कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अविरल मलिक जी तो अगर आप बताइए परमिशन सर। आप ले, जी जी आपकी बात सुनी। डॉक्टर मलिक, जो अपराधी है उसके बीवी बच्चे हैं, अगर वो किसी घर में रह रहे हैं तो उसको डिमोलिश करने का क्या मतलब हुआ सर? ये तो वाजिब बात है ना, ये तो जायज बात है। और सुप्रीम कोर्ट उसकी- के बार उसकी क्या बार गलती? ऑर्डर के बाद भी आप बुलडोजर लेके पहुंच के तोड़ डालते हैं। बोलिए सर, डॉक्टर मलिक प्लीज। जी नहीं, हम तो कह रहे हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि उनके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, घर परिवार है, सब है, वो प्रोटेक्टेड रहे, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जो अपराध में शामिल होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसे गिराना जरूरी है। इस पे हमें सबका समर्थन चाहिए। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पे सबका समर्थन होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कहीं कब्जा करके जमीन पे बनाया हुआ है तो हम संजय जी से ही मांग रहे हैं। अरे तो इलीगल प्रूफ कराइए ना, पहले जाते थे बुलडोजर चला दोगे आप किसी घर में जाके? अरे कोर्ट से प्रूफ कराइए, हाँ ये इलीगल प्रॉपर्टी है, इसे बुलडोजर चलाना जरूरी है, चलाइए आप, तब तक अपना इंतजाम कर ले रहने का। इधर मरा नहीं आदमी, उधर बुलडोजर पहुंच गया परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार बेदखल करने के लिए। ये कोई न्याय थोड़ी ना है, ऐसी कोई ये रामराज थोड़ी ना कहते हैं इसको, इसको तो रावण राज कहते हैं, तानाशाही कहते हैं इसको।
ये तो सर रावण प्रॉब्लम राज है। कहाँ पर आती है संजय रावण राज द्विवेदी नहीं। जी? संजय रावण राज द्विवेदी जी नहीं तकलीफ कहाँ पर आती है? अरे डॉक्टर मलिक कहाँ चले गए सर? आ गए सर, आ रहे हैं। अरे डॉक्टर मलिक जल्दी आइए। डॉक्टर आ रहे अविरल हैं, मलिक सर, आपको आ ये रहे बात सुननी तो पड़ेगी। भाई रामराज ही थोड़ी ना है। जी लेकिन एक चीज तो ये तो है, रावण राज हुआ सर ना, लेकिन एक चीज तो है सीधी सादी तानाशाही सर हुई है। सर प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आती है द्विवेदी जी? आपको भी मालूम है कि कोर्ट में कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता, कोई मैजिस्ट्रेट उनकी क्या केस सुनने को तैयार नहीं होता। प्रॉब्लम बहुत है सर वहाँ पे। सर मैं what do you illegal do? property अब सर बात देखिए कर रहा अब अतीक साहब जो है, जैसे अतीक अहमद मैंने है, इलीगल प्रॉपर्टी सर बात की। इलीगल प्रॉपर्टी तो पेपर में होती ना। पेपर में होती है, लेकिन उसको ऑर्डर कौन देगा? मैजिस्ट्रेट ही जज देगा ना देगा ऑर्डर सर, डेमोलिशन जज के ऑर्डर लिए। देगा। जब अपराधी मर ही गया है, जो तानाशाह था वो तो मर गया है, तो सारा कौन उसको तो करे। आई थिंक डॉक्टर मलिक हैज लेफ्ट अस। डॉक्टर मलिक साहब इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इसका जवाब नहीं। सर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए। नहीं जब सर, वो तानाशाह मर गया, सर माफिया लीगली मर गया, कानूनन आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कानूनन ऐसे ही होता है, लेकिन वहां पे कानून क्या है कि कानून कहाँ से फॉलो करेंगे सर? इसलिए योगी जी ने कहा ठोक दो, और क्या बस। नहीं तो रामराज थोड़े ना रहा सर ना। योगी जी को ठोकने की बात हुई थी तो अपना सांसद में रो रहे थे सर। क्यों रो रहे थे भाई? भाई सांसद में क्यों रो रहे थे? जो सांसद में रोने वाला व्यक्ति जो है वो आज ठोकने की बात कर रहा। वाह भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत सुंदर सर। रोने लगे सांसद भवन में सर, बताइए, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। Right, I think Dr. Aviral Malik has left us. Yes. And time for us also to say goodbye to Sanjay Dwivedi Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Dwivedi साहब, but you have raised very good points. The point you have raised is बहुत वाजिब है सर, इसका जवाब मिलना चाहिए कि भाई या तो आप कानून को खत्म कर दीजिए। हाँ, सर। अविरल मलिक साहब आ गए जी। डॉक्टर आ गए, मलिक, आ गए, धन्यवाद। डॉक्टर मलिक अब आप ये बताइए सर कि सर कानून के तहत चलना चाहिए ना, तो हर चीज तो मैं मानता हूँ डिफिकल्टी है। जैसे मैं अभी संजय द्विवेदी जी को बोल रहा था कि भाई क्या है कि ये जितने बड़े बड़े सूरमा थे, दबंग लोग जो थे, जैसे अतीक अहमद हो गया, अफरोज हो गया, बाकी उनके जितने भी लोग हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, उनका कोई केस सुनने को भी तैयार नहीं होता था। प्रॉब्लम ये थी मैजिस्ट्रेट तक उनका केस नहीं सुना करता था। ये होता है। मैजिस्ट्रेट तो बैडमिंटन खेलता था मुख्तार अंसारी के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ जेल में जाके। तो सर मेरा ये कहना है कभी कभी क्या है कि विच इज वाई पीपल आर वेरी हैप्पी। लोगों को क्या लग रहा है कि भाई ठीक है यार, हमारी प्रोटेक्शन तो हो रही है ना, जो भी हो रहा है ना। आई एग्री, सो यू मस्ट हैव स्पेशल कोर्ट्स, या तो फिर कानून में चेंज लाइए। डॉक्टर मलिक बताइए सर। सर आपका वो म्यूट पे है सर, फोन आपका म्यूट पे, अनम्यूट करिए ना जी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। डॉक्टर मलिक आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब बोलिए सर, आपके खांसने की आवाज तो आई है जी। डॉक्टर मलिक, आई कांट हियर डॉक्टर मलिक, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज? सर आपका फोन म्यूट पे, अनम्यूट करिए ना फोन को। डॉक्टर मलिक, कैन somebody help डॉक्टर मलिक प्लीज अनम्यूट हिज फोन? टेक्निकल प्रॉब्लम सर है। सर हेलो बोलिए ना सर। डॉक्टर मलिक हेलो बोलिए, हेलो। आई कांट हियर हिम। Right, I don't know, because he was speaking quite perfectly at the moment. My only point is people have to be safe. I agree with you, the rule of law has to prevail, irrespective of whatever. Pradeep ji, if you remember, Ajmal Kasab tak ko bhi हमने पूरा rule of law follow किया ना. Everybody knew he was guilty. उसको उसी दिन हैंग कर सकते थे, उसको मार सकते थे, जी, मारा जी। नहीं ना। हम लोगों ने भाई पूरी कानूनी कार्रवाई करी ना, उसके बाद जाकर के उसको फांसी चढ़ाई ना। एंड ही वाज नॉट इवन एन इंडियन, ही वाज अ पाकिस्तानी, गुजरांवाला से था भाई, पाकिस्तान से था। तो मेरा ये कहना है कि भाई द रूल ऑफ लॉ हैज टू प्रिवेल, यू कांट, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर इन मुंबई। संजय द्विवेदी जी आपको तो मालूम ही होगा, जो हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे वो सब करोड़पति अरबपति बन गए। जेल में है सर। अलग अलग लोगों की सुपारी सर लेकर जेल में है सर, जेल में है सर। नहीं आ गए, बाहर आ गए सर, बाहर आ अच्छा, आ गए गए सब सर, सब बाहर ठीक है है। सर। यहाँ सब हो जाता है सर, सब बाहर है। मतलब अरबपति हैं सर सब। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं सब लोग। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं सर। उसमें क्या होता किस्सा है मालूम है सर हमको पूरा। सो एक बार क्या होता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक बार क्या है कि पुलिस को आप अगर ओवरराइडिंग पावर्स दे दें तो उसका मिसयूज होता ही होता है आगे जा करके, वो मिसयूज करते ही हैं, तो उसमें तकलीफ हो जाती है बड़ी। तो मतलब सर मैं एक किस्सा बताऊं आपको। जी। मेरे ताऊजी एसडीएम थे, बाई चांस मैं उनके कोर्ट में बैठा था एक दिन सर, जी तो ऐसे इनकाउंटर वाला एक मैटर उनके पास आया। उन्होंने कहा भाई मैं तो साइन नहीं करूंगा इसमें।
कि आपको हाँ। सही वाले क्यों मिलते हैं और आप अध्यक्ष होने में क्यों करने जाते हैं? जी, मेरी और आवाज आप रिक्शे तक पहुंच पा रही है अभी? जी, आई थिंक डॉक्टर मलिक इज बैक। जी जी डॉक्टर मलिक की मुझे तो आवाज आ गई। अब वो कब हमारे लोग कब अब उनको दिखाएंगे स्क्रीन पे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जी बोलिए ना सर। कैन वी सी जी डॉक्टर मलिक ऑल्सो? कैन यू पुट हिम ऑन स्क्रीन प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? थैंक यू सो मच। देखिए जहां तक विषय, देखिए Waiting, सवाल waiting. पूछा जो उत्तर प्रदेश की बात है, या एक तरीके से सवाल जो किए जाते हैं। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन शक्ल नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या बात है। Why can't I see? बिल्कुल Now I आपकी can see you. आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आप बोलिए 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 सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जहां तक विषय एक तरीके से सवालों का और जवाबों का, हमारे ऊपर ही क्यों हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं? हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज को कह रहे हैं, जो एनकाउंटर होता है उसकी क्या स्थिति है वो मैंने आपको बता दी, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को सही रखने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, संविधान के मुताबिक स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो उस आधार पर हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। अब रही अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड का विषय, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। ऐसे अपराधियों को जेल भेजने का हम कार्रवाई एक तरीके से कार्रवाई करते हैं, जिन लोगों ने उस प्रकार की हरकत को अंजाम देने का काम किया और लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से खतरे में डालने का काम किया। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली मुख्तार अंसारी साहब का, वो पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, समाजवादी पार्टी के ही नेता थे विशेष रूप से, और किन्होंने उन्हें रखा, किन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी एक विषय। और अफजाल अंसारी साहब हैं, गाजीपुर से सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं एट प्रेजेंट, तो उनके भाई हैं। और जहां तक विषय है आगे बढ़ाने का, समाजवादी पार्टी की कितना सहयोग रहा वो तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन कानून का जहां तक विषय है, कानून के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। मेरा एक सजेशन है, सुझाव है मेरा। उनकी डेथ के ऊपर, उनकी मृत्यु के ऊपर जिस प्रकार के सवाल खड़े किए गए, मैं समझता वो भी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण थे। नेचुरल डेथ जिस प्रकार से उनकी हुई वो सबके मध्य में आया, लेकिन हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, हमेशा हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। नहीं, पर योगी जी जब कहते हैं अपराधी या तो जेल में रहेंगे या भगवान के घर या ऊपर, तो आप जब चीफ मिनिस्टर खुद इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं तो दाग तो लगेगा ही। डॉक्टर मलिक साहब, आप पूछ रहे क्यों दाग लग रहा है? चीफ मिनिस्टर का बयान है, वही तो चीज है, वही तो चीज है। अपराधी या तो जेल में रहेगा या भगवान के घर। बात कर रहे हैं, अगर या तो जेल में रहेंगे या ऊपर वाले के घर। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एनकाउंटर होता है, मैंने बताया, तो जब पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली चलाती है, लोग उन्हें अपराधियों को गोली लगती है और उनका देहांत जिस प्रकार से होता है सबके मध्य में है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें पकड़े और कानून के सामने पेश करें, कोर्ट में पेश करें। पुलिस की जिम्मेदारी होती है, बाकी कोर्ट देखता है, कोर्ट उन्हें सजा देगा, जेल भेजने का काम करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम तो सही तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे हैं और आज बेहतरीन उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो डॉक्टर मलिक चलने के जाने के पहले एक छोटा सा मेरा एक सुझाव है, मैं कई बार ये सुझाव दे चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कभी ना कभी कोई ना कोई इसको सुनेगा। सर, अंग्रेजों के ज़माने में जो एसडीएम हुआ करता था, अभी संजय द्विवेदी जी ने बात करी एसडीएम के बारे में, उनके पिताजी एसडीएम हुआ करते थे। जो एसडीएम होता था, डीएम जो हुआ करता था या कलेक्टर जो हुआ करता था, सर अंग्रेजों के ज़माने में उसकी ऐसी धाक हुआ करती थी, कहने की हद नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसके सामने कुछ करने की, भले वो बड़े से बड़ा डाकू हो, बड़े से बड़ा कोई और हो। क्यों? क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1। नंबर 2, जितने जजेस थे ना सर, उनको जो मकान दिए गए थे वो ऐसे थे, ऐसे लगता था कि कोई रियासत का मालिक यहाँ पे बैठा है। और साथ में जो तनख्वाह हुआ करती थी ऐसी थी कि उसके बाद किसी मैजिस्ट्रेट के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मैं रिश्वत ले लूँ। और साथ में जो सिक्योरिटी उनको दी जाती थी वो ऐसी थी कि कोई भी डकैत, कोई भी 20 बार सोचे कि पहले इनके ऊपर हम लोग हमला करें। सर, आई वुड सजेस्ट the government and everybody else should provide the same kind of facilities to our judges, to our magistrates and everybody else. We should protect them. अब वो बेचारा जज है सर, लोकल ट्रेन में आ रहा है या किसी गंदे से ऑटो में आ रहा है, किसी गंदी सी अपनी मारुति 800 में आ रहा है या कहीं पर आ रहा है, और वो केस डिसाइड कर रहा है 2000 करोड़ का। आप खुद सोच के बताइए सर, इज इट फेयर? और एक हॉनेस्ट जज है श्री कृष्णा, उनका घर में चोरी होता है, उनके घर में चोरी हो गई, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है बेचारे घर में। ओ किसी के घर में किसी की बेटी बीमार थी, जज साहब के घर में सर, हाई कोर्ट के जज, उनकी बेटी बीमार थी, ही हैड टू कॉल अप एवरीबॉडी एंड बाय द वे इंक्लूडिंग मी। मुझे लेके जाना पड़ा उनकी बेटी को हॉस्पिटल,
और हॉस्पिटल में वहां पे गारंटी देनी पड़ेगी, हाँ यार तेरा बिल पूरा हो जाएगा, जल्दी करो। सर ये हाल जजेस का है। आप मुझे बताइए, जब तक के जुडिशियल रिफॉर्म करते रहिए सर, तनख्वाह भी बढ़ाइए ना, फैसिलिटीज भी बढ़ाइए ना, जजेस की सुरक्षा भी बढ़ाइए ना, तो ही जाकर के मिलेगा। फैसिलिटीज भी एक तो निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, इस बात को हम भी कहते हैं, और आज के समय बहुत कम है। और रही बात एसडीएम की, तो एसडीएम का तो ये हाल अब तो अच्छी खासी ठीक ठाक उत्तर प्रदेश में गाड़ियां हैं। जब अखिलेश जी की सरकार होती थी, एक सूमो होती थी, बड़ी सी सूमो, जी, जो जी, टाटा की मालूम है। सूमो आपने देखी होगी, मालूम वो है एसडीएम की वो गाड़ी हुआ करती थी। मालूम एसडीएम है। की एक टाटा सूमो, और उसमें उनके 2-3 सिपाही होते थे, वो उसी में बैठ के उसी में ही उन्हें लेके घूमना पड़ता था। एसडीएम के हालात होते थे। और कभी दिल्ली कभी के डीजल भी नहीं SDM होता का था। हाल था है वो कि एक इर्टिगा गाड़ी मिलती है, और एसडीएम अरे जो है सर, वो डीजल इर्टिगा भी को नहीं होता था दिल्ली में उसमें। करते हैं आज के समय। सर गाड़ी में डीजल भी नहीं होता था, वो तो हमने वो दृश्य भी देखा हुआ है। एसडीएम साहब जा रहे हैं, डीजल खत्म हो गया गाड़ी में, डीजल के पैसे नहीं है, ये भी हुआ करता था। और हाँ, पेट्रोल बिल्कुल, और पेट्रोल पंप वाले ने डालने से इनकार कर दिया। उनका ये भैया पिछले 6 महीने का बकाया पड़ा है मेरा, पहले वो क्लियर करो। एटलीस्ट ये हाल तो नहीं है। बट स्टिल आई अपील टू एवरीबडी सर, ऑल पार्टीज कंसर्न, इफ यू वांट जस्टिस ओवर हियर इन दिस कंट्री, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर जजेस। सर जजेस वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो फैमिली है सर, यू हैव टू लुक आफ्टर देम। नहीं तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज वो करप्ट हो ही जाएगा सर, कुछ भी कर लो हो ही जाएगा। वो आखिर में बोलेगा यार देखो मेरी फैमिली के ऊपर ये गाज गिरने वाली है, ये गिरने वाली है, क्या करेगा आदमी? आप खुद सोचिए ना सर। वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीबडी। एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर मकर संक्रांति। जय मकर श्री राम। संक्रांति की मकर बहुत संक्रांति बहुत शुभकामनाएं आप जय सब श्री लोगों को। जय श्री राम, थैंक यू वेरी हर मच। महादेव। हर 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 महादेव, थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। Right, Pradeep ji, so that was a very useful discussion Yes, bilkul. with everybody. I wish Kapish Srivastava sahab could have stayed, but he ran away. He said he had to go to another show. God knows which show. Anyway, he must have gone to a show where they won't let him speak. Maybe he likes being yelled at. In any event, as far as we are concerned, we are absolutely fine. और कल सर एक बार फिर मैं सभी लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि भैया वोट दो, वोट देने जरूर जाना मुंबई के लोगों। और बाकी 28 और जो कॉर्पोरेशन है, टोटल 29 कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र में, हर जगह आप वोट कीजिए प्लीज। अगर आप वोट नहीं करेंगे उसके बाद शिकायत मत कीजिए, चिल्लाइए मत कि ये नहीं हुआ, रोड नहीं बनी, गटर नहीं है, वाटर नहीं है, मीटर नहीं है। प्लीज ये मत करिए, एक्चुअली जाकर के वोट कीजिएगा। अगर आप वोट करेंगे उसके बाद जाकर के आपका पूरा हक बनता है अपने कॉर्पोरेटर को बोलने के लिए भैया तेरे लिए वोट किया, कर क्या रहा है तू। और वोट नहीं भी किया फिर भी आपका हक बनता है, क्या किया तूने, लेकिन वोट जरूर करना है। प्लीज डू वोट wherever you are, in all the 29 corporations all over Maharashtra, please vote. And I'm really impressed with the way Mr. Devendra Fadnavis has worked, with the way Mr. Devendra Fadnavis and Eknath Shinde, their work is really and truly brilliant. Both of them deserve our congratulations, irrespective of whosoever wins. Right, that's it, that's all we've got for you. और जाने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation. From both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.